Hello and welcome. You're watching this budget exclusive interaction and budget expectation interaction where I'm at Dadar Shivaji Park, the very famous Mumbai Dadar Shivaji Park, and I've got a bunch of senior citizens with me. और चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब नई सरकार के बाद जो पहला फुल बजट आने वाला है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, एक आम टैक्स पेयर की भी, एक प्रोफेशनल की भी, सीनियर सिटीजन्स की भी, महिलाओं की भी। तो जब तक हम इनकी बात करें, वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, ये क्या चाहते हैं अब की बार वित्त मंत्री साहिबा से, पेंशन्स की बात हो, टैक्स रिलीफ्स की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, हाउसिंग की बात हो, what exactly the senior citizen of this country demand from the finance minister. Let's talk about this, sir. Thank you so much. In fact, all of you, thank you so much for joining me today. Sir, what are your demands? वी आर प्रोफेशनल। Yeah. तो मुझे कहना है हाँ. कि जो इनकम जो है लिमिट है सबकी, बराबर, टैक्सेस जो है हाँ. वेरी हाई है। हाईएस्ट टैक्स 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए जो भी है। और जो स्मॉल जो है 5 लाख फ्री, 5 के ऊपर 5%, 10 के ऊपर 15% एंड 20 के ऊपर 20 फ्लैट रेट। ये अपना कॉर्पोरेट लेवल इज द 25% फ्लैट। मैं ये पसंद करता हूँ क्या, बराबर। और दूसरा है कि सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन होना चाहिए। Okay. रेलवे में टैक्स में है लेकिन बहुत मतलब कम है, Right. वो ज़्यादा 50% होना चाहिए। Right. Right. और फैसिलिटी जो है जैसे हाउसिंग की है वगैरह, उसमें इंटरेस्ट भी सीनियर सिटीजन के लिए कम लगना चाहिए। So overall, we are talking about better living conditions. We are talking about higher disposable income in their hands. We are talking about a lot of tax reliefs. Sir, what do you expect? आपकी क्या डिमांड होगी? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का मेन प्रॉब्लम थे हेल्थ इश्यू। ये एज में एक्चुअली हम लोगों के पास जो मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए वो आइदर वी गेट आफ्टर इंश्योरेंस निकालने के बाद में मिलता है। अभी इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट आजकल हॉस्पिटल के चार्जेस इतने आते हैं कि जिसमें वो कवर नहीं होता है। और वापिस उसमें इंश्योरेंस का जो हम ये भरते हैं इंस्टॉलमेंट, उसमें भी हमको 14% 18% GST लगता है। हाँ। वो भी निकालना चाहिए। हाँ। और सीनियर सिटीजन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। कौन सा भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जो डिसीज़ होगा उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। You are not getting any medical facility, anything, and you are giving pension 2,400. True. See, this is not a way. Yeah. You should think about and what is the Absolutely. whatever the meaning, Yeah. and you should complete the thing. That is my still, True. Sir, and so many other things, but let them. Yeah, let them speak. जीएसटी अलग है, टैक्स अलग है। बड़े लोगों के लिए जो 30% वो बढ़ता है, लेकिन जो साधारण आदमी है वो इतना कमाता भी नहीं है कि वो 30% टैक्स दे सके। इसलिए इंडिया में हर एक के लिए अलग रेशिया होना चाहिए। किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 15%। कन्फ्यूजन इतना है कि लोग इससे बचने के लिए टैक्स चोरी करते हैं, धंधा बताते नहीं है। अगर आपको पूरा धंधा बताना है और पूरा इनकम लेना है तो उसके लिए टैक्स रेशियो जो भी है वो कम करना चाहिए, जिस वजह से लोग ज़्यादा आपके टैक्सेस से जुड़ेंगे और इंडिया की इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे? I will insist on the senior citizen railway concession. This has been stopped from COVID-19. No, it should be start and there should be given at least 25% to 30% to all senior citizens. Right. Secondly, I will suggest this tax GST which were charging on insurance, it should be completely stopped. Right. All right. Sir, what would you like to say? We are the senior citizen. We have been we have had all the people who either he was working or he was doing a business. We used to pay all the taxes whatever we can, and it was possible for us. But in spite of that, after retirement, what are we getting return out of it? Government is not giving any facility for the people who are paying the taxes for last 50 years. Right. So you should think of it. And we are not asking for the free traveling, but we should get some concession after 70 plus by railway, bus or anything. Plus we should get some facility in the tax, if you have taxpayers who has been there at least for 50 years. You are paying the taxes, you should be your concession in the hospitalization also. Right. So this is not done. So we are expecting that at least by within 2-3 years,
Modi will think better of it and will do the best of it. सर पेंशन मेरे ख्याल से एक बहुत पुरानी पेंशन रिफॉर्म को लेकर हमेशा से वरिष्ठ नागरिकों की एक मांग रही है। अब की बार आपकी स्पेसिफिक मांगे क्या होंगी वित्त मंत्री साहिबा से? अपने को जब भी मार्केट में जाते हैं तो ये चीज़ पेंशन के लिए कमती है, पेंशन नहीं उसको ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। सबको एक ही बजट लगाता है। उस टाइम में जिसका पास पैसा है वो खरीदता है, जिसका पास नहीं है उसका हालत ख़राब होता है। तो ये होने से क्या होता है, चोरी बढ़ता है, आदमी लोग का खाना नहीं मिलने का मर जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है कि वो कोई उसको सुधारता नहीं। तो इसके लिए तो पेंशन में फिर किस तरह की मांगे आपकी हैं? जो बढ़ाते हैं, महंगाई में जो बढ़ाते हैं वो खरीद सके इतना कैपेसिटी उसका होना चाहिए। हाँ। तो पेंशन की रकम में इजाफा जो है वो महंगाई के मुताबिक होना चाहिए, ये इनकी मांग है। अच्छा, एक इंश्योरेंस को लेकर और इंश्योरेंस की कवरेज को लेकर भी बहुत ज़्यादा मांगे आ रही हैं फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स, बिकॉज द वे वी आर लुकिंग एट मेडिकल इन्फ्लेशन गोइंग अप विद 12 to 15% ईयरली। मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन्स बहुत मुश्किल हो गई है, उनके प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सर मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर कोई स्पेसिफिक डिमांड आपकी जहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए? मेडिकल इंश्योरेंस मैं फैमिली पेंशन के बारे में बोलता हूँ। बिल्कुल सर, बोलिए। फैमिली पेंशन में क्या है, 10 साल हो गया कभी से फैमिली पेंशन बिल्कुल बढ़ता नहीं है। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 1500 इतना ही मिलता है सब लोग को, बहुत से कामगार। और वो दवा अभी देखो सीनियर सिटीजन को बहुत कुछ बीमारी रहती है, हॉस्पिटल का खर्चा रहता है कुछ भी, तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए वो सरकार कभी से बोलते हैं कि बढ़ाने का है। और इतना गलत न्यूज़ आते हैं कभी कभी कि पेंशन बढ़ गया, अभी अगले महीने में बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है, मगर कुछ होता नहीं है। इसके बारे में कुछ सरकार ने कुछ करना मांगता है, ऐसा हमारा सब लोग का राय है। आप बताइए, बोलिए। आपकी क्या डिमांड होगी अब की बार वित्त मंत्री साहिबा से? अपना भारत का सौभाग्य है कि अपने को अच्छे अर्थमंत्री मिले, एंड अर्थमंत्री अपने सबके लिए इतनी काम कर रही है कि पूछो ही मत। कल के न्यूज़ में मैंने सुना कि ये सब पेंशन और इसमें सब बढ़ोतरी वार्ड होने वाली है। दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ सब सीनियर सिटीजन्स है, यहाँ सीनियर सिटीजन्स रोज आते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन, मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स आर रिटायर्ड, सब रिटायर्ड है। एंड रिटायर्ड लोगों को जब भी वो लोग नौकरी करते थे तभी उनको जो तनख्वाह मिलती थी, उनका वो बजट था, उसमें बहुत 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 बढ़िया यानी बढ़ती हो गई। उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, वो आपको मालूम है बढ़ रही है, लेकिन जो बजट का पहला जो उनको जो हिस्सा था वो वैसा ही रहा है, उसमें वाड़ नहीं हो गई। कल के पेपर में मैंने सुना कि उसमें वाड़ होने वाले, दैट इज़ वेरी गुड, और वो होनी ही मांगता है। वी थैंक्स फॉर अवर निर्मला भाई सीतारामन जी कि उन्होंने जो अच्छा डिसीजन लिए और वो डिसीजन बजट का अगले अर्थमंत्री के साहब के सामने होने वाला है। दैट इज़ वेरी गुड। ये सबको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल सीनियर सिटीजन जो पुरानी तनख्वाह थी, पुराना उत्पन्न था, पुराना इनकम था, उसके ऊपर वो अपना गुजरान कर रही है, वो पूरे सा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर पेंशन की जो रकम है उसमें इजाफा करने डेफिनेटली दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड। आई हैव अ मैम आल्सो ओवर हियर विद मी। नमस्कार। बजट जो आने वाला है 1 फरवरी को, उसमें आपकी क्या मांग होगी फाइनेंस मिनिस्टर से? हेलो, बजट का हम कितनी भी मांगे करेंगे तो वो लोग पूरी करते हैं ऐसी बात नहीं है। पहली जब और क्या है, वो बोलते हैं, जाहिर करते हैं ये देता है वो देता है, असल में कुछ नहीं मिलता है। तो जो कुछ देने का है ना वो सामने से बराबर करके दे दो। एक बात बोलने का और नहीं देने का वो गलत है। सीनियर सिटीज़न का रेलवे का कंसेशन निकाल दिया, ये गलत किया, क्योंकि आजकल ज़्यादा सीनियर सिटीजन जा भी नहीं सकते, मगर वो जो जा सकती है उनके लिए कुछ सुविधा होगी, अच्छा होगी।
अच्छा आने जाने के लिए चलने के लिए व्हील चेयर लगती है कुछ, वो मांगना सुविधाएं पड़ता है, वो मांगनी सामने पड़ती से है। हाँ हर जगह उन्होंने रखना चाहिए कि क्या क्या सुविधाएं चाहिए. All right, so in a nutshell, we have senior citizens demanding for better insurance coverage and definitely concession as far as their rail travel is concerned, better living conditions, and yes, a lot of money in their hand as disposable income. So that will be all as far as senior citizen budget expectation is concerned.